वीडियो ऑनलाइन में अभी करीब 2,500 बच्चे जो हैं वो हमारे 5 कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। 1.5-2 साल में करीब 75 स्टार्टअप्स को फंडिंग करी है, जिसमें भारत सरकार ने भी करीब 9 करोड़ रुपए लगाए हैं। एंड दिस हेल्प्ड अस टू, इन सारे स्टार्टअप से करीब 2 से 2,500 जॉब्स का नया क्रिएशन हुआ। देखिए, अभी हमारे पास जितने बच्चे हैं उनमें से करीब 40% बच्चे टायर 3 और टायर 4 सिटीज़ के हैं। रूरल एरियाज़ में हमारा मास क्राउड है और सभी यूनिवर्सिटीज़ और जो यूजीसी की तरफ से भी जो गाइडेंस है वो यही है कि रूरल एरियाज़ के बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन ऑनलाइन डिग्रीज को करें। यही है कि फ्रेशर्स जो किसी ना किसी कारणवश अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, अपनी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी तैयारी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो कोचिंगों में चले जाते हैं और रेगुलर कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। उन सब के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा ऑप्शन है। So hello and welcome back everyone to another episode of Experts की राय, and today we are here at Vivekanand Global University and we are going to meet the CEO of this university, Omkar Bagaria ji, who has his journey from engineering to educationist. So let's meet him and talk about online education of this university. So let's go and meet the CEO और उन्हें हॉट सीट पे लेकर आते हैं। ये आपका माइक एंड इसे लगाइए और चलते हैं, फिर हॉट सीट पे आपको बैठाते हैं एंड सवाल जवाब करते हैं। थैंक यू मैम। So welcome sir, welcome to our show Experts की राय and we are honored to have you here. Thank you. Sir, I have seen that you have a very good background. You have been an engineer and then in education field. So how important is the education for any person to get a successful life? I really need your example for that. I'll start with my family to give an example. My grandfather was a farmer and he has 6 children, and all of them studied very hard from the top institutions, worked very hard, and whatever they are today is that because of the education. So education today for the lower middle class and for the middle class also is the main tool to achieve success in life. That is the main thing which they have to do. Of course, the education includes the skill set, or maybe if you are a sports person also. So there also you need to have some kind of a education, some kind of a training. That is a education only. So formal or informal education or the training or getting the skill set is very important in today's world. This is a knowledge economy which we say India, because India is not a manufacturing hub. We are more of a service oriented economy. So in the service oriented economy, the knowledge set and the skill set plays a vital role for any person to achieve something. And what makes you change your complete domain from engineering to the education, in the education line? So this institution, Vivekananda Global University, was founded by my father, Dr. K.R. Bagaria. He founded one of the few top institutions in the state of Rajasthan, including the SKIT Jaipur, which is our sister concern. And when he moved to Rajasthan Public Service Commission as a member, I came back to nurture these institutions in the year 2015. Okay, nice story. So sir, I have seen that many universities do have this NAAC accreditation, and to offer online or ODL education they must have NAAC A+, I guess. Yes. So why it is important to have this accreditation and other accreditations as well for a university to offer any program? So accreditation is basically
is the checking of the quality parameters. So for example, NAAC or NBA accreditation, they have set quality parameters that you have to achieve something in research, something in placement, something in the way of doing things. The processes are in place, the SOP is in place. So this is very necessary from the two point of view, that it is a certificate to an institution that yes, you are going right. And it is also once the first accreditation cycle is done, you are checked regularly. Every year you have to submit data, every year you have to check your processes. So that helps the institution itself to increase their quality parameters. As far as the online education and the distance education is concerned, the online and the distance education primarily caters to a vast population. So if your quality parameters are not there in place, systems are not there in place, you cannot get it to so much of knowledge. And education is one thing where it affects the person's life. So if I am studying from an institution, they doesn't follow the proper processes, they don't have a quality teachers, they don't have the pedagogy to teach them. So if these things are not there, it will affect my career. So I feel that government is very right when it says that to launch a course in the online mode or in distance, you either have to have an A+ accreditation or you are in the NIRF top 100. So that's the important criteria. That is the bare minimum thing to do that, and it's very important. Sir, there is a vast number of students अभी भी हैं ऐसे जिन्हें लगता है कि ऑनलाइन डिग्री इज़ नॉट फॉर, अगर वो करेंगे तो वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकती या फिर टॉप MNCs के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. सो उनका ये मिथ कैसे क्लियर करा जाए, या फिर इज इट ट्रू? जी, इस मिथ को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे इस पे बार बार बोलते हैं, ऑब्वियसली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे टीचर्स हैं, तो सबका अपना अपना एक व्यू पॉइंट है. बट UGC ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसके तहत ऑनलाइन डिग्री, ODL डिग्री और रेगुलर डिग्री तीनों बराबर हैं. और इसका बराबर का जो तरीका भी जो UGC ने निकाला है कि आपका जो करिकुलम रेगुलर में है वही करिकुलम डिस्टेंस में, वही करिकुलम ऑनलाइन में है. ऑनलाइन में मेजरली पोस्ट ग्रेजुएट के बच्चे अभी आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि बहुत सारी MNCs हमारे पास भी और बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल जो इंटरव्यू ले रहे हैं या रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो ऑनलाइन ही ले रहे हैं. तो अगर आप ऑनलाइन डिग्री करेंगे या रेगुलर डिग्री करेंगे, आपके स्किल सेट के बेसिस पे आपका जॉब लगता है. एंड देयर इज नो डिफरेंस एज सच कि आपने डिग्री ऑनलाइन से MBA किया है या MCA किया है तो आपको MNC में जॉब नहीं मिलेगा या सरकारी नौकरी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे. ऐसा नहीं है. बाकी आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस और आपकी जो बेसिक परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होता है. So it is totally a myth कि ऐसा? Yes, ये एकदम एक मिथ है. जहां तक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन की बात है, गवर्नमेंट की तरफ से इसका बारे में ज्यादा बताने के लिए तैयार है. UGC ने एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी 2023 में इस बारे में निकाला है. एंड सर, अभी हमने स्टूडेंट्स की बात करी, इसी के साथ हम अर्बन एरियाज में तो हैं, वी ऑल आर इन अर्बन एरिया, सभी यूनिवर्सिटीज आर कैप्चरिंग दैट, बट VGO ऑनलाइन रूरल एरियाज में कितना? देखिए, अभी हमारे पास जितने बच्चे हैं उनमें से करीब 40% बच्चे टायर 3 और टायर 4 सिटीज के हैं. रूरल एरियाज में हमारा मास क्राउड है, और सभी यूनिवर्सिटीज और जो UGC की तरफ से भी जो गाइडेंस है वो यही है कि रूरल एरियाज के बच्चे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन ऑनलाइन डिग्रीज को करें. चैलेंज ऑफ कोर्स एक इंटरनेट का चैलेंज जो है वो है, जिसका भी भारत सरकार जो है भारत नेट अब आजकल हर पंचायत पे लगा रही है, और उसके तहत इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है कि ये ऑनलाइन डिग्री है क्यों? ये है इसलिए कि हमारा GER रेशो जो है अभी 28% है. हमें उसे अगर डेवलप्ड नेशन बनना है, एक विकसित भारत बनना है, जो 2047 में प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, तो विकसित भारत के लिए हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 80% के आसपास होना चाहिए. तो अभी हम 28 पे हैं. तो इसके लिए
बहुत सारे कॉलेज और स्कूल हाई क्वालिटी के एकदम से तो खुल नहीं सकते, क्योंकि आपको बहुत सारी बिल्डिंग चाहिए होगी, बहुत सारे वो चाहिए। तो हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, जो NAC A+ और NRF टॉप 100 के इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी एजुकेशन को मास में पढ़ावाएं, इसी के लिए ऑनलाइन है। तो ये जितना रूरल एरिया में हमारे गाँवों और पंचायतों तक पहुंचेगा, उतना ही हमें फायदा होगा। एंड जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, वहाँ वो रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है, मतलब उन तक अवेयरनेस कैसे फैला रही है? क्योंकि अभी भी काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि उन लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ही अवेयरनेस नहीं है, तो हम कैसे उन तक? देखिए, जहाँ तक हमारा अवेयरनेस के बारे में बात करने का है, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, प्राइमरली आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जो है हर गांव घर घर तक पहुंच गया है, वो रूरल एरियाज में भी है। तो हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू हम बहुत सारी बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें उनको जो भी मिथ हैं उनके तहत। इसी तरह हम बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, जैसे कॉलेज विद्या आपका भी प्लेटफॉर्म है, इनके तहत हम हमारी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि अखबार और उनके थ्रू, या कुछ गाँव में और बड़ी पंचायतों में आप सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हम इन सब कोर्सेज के बारे में सभी को बताते हैं। एंड आपको क्या लगता है कि किस तरीके के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू करनी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन सबसे बड़ी उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी या इम्पोर्टेंट है कि जो जॉब कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। आपने डिप्लोमा किया है, आप BBA करना चाहते हैं, आपने BBA कर रखा है, आप जॉब कर रहे हैं, अपनी जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आपकी एक बेसिक एजुकेशन हो चुकी है, आपको एक बेसिक समझ है कि मुझे काम करना है, मेहनत करनी है, आगे करना है, और उसका एक नॉलेज और सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए, वो ऑनलाइन एजुकेशन के तहत आ रहा है। दूसरा है हमारा रूरल का मास, जो किसी ना किसी कारणवश हाई एंड कॉलेजेस और स्कूल्स में नहीं जा पाता है, उनके लिए ये लो फीस में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जो घर बैठे, ताकि वो अपना जो भी घर का काम कर रहा है, साथ में और कोई काम कर रहा है, उसके साथ साथ एजुकेशन कर सके। एंड ज़्यादातर जो रूरल एरियाज में लोग बच्चे होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से भी ट्रैवल इधर से उधर नहीं कर रहे हैं, वो बीच में छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ने की जगह वो ऑनलाइन एजुकेशन के तहत अपनी डिग्री को पूरा कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में निभा सकते हैं। बिल्कुल। अलॉन्ग विद दैट दे कैन स्टडी। एंड व्हाट अबाउट सर फ्रेशर्स? मतलब फ्रेशर्स को नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28% की बात कर रहे हैं, तो वो तो हम बेसिकली फ्रेशर्स की ही बात कर रहे हैं। आज भी हमारे जो 12वीं करता है, उसमें से सिर्फ 28 बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन करते हैं, और हम एज ए देश विकसित भारत के लिए हमें 80, मतलब 100 में से 80 बच्चों को ग्रेजुएशन करानी है। तो जरूरी यही है कि फ्रेशर्स जो किसी ना किसी कारणवश अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, अपनी काम की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, किसी तैयारी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो वो कोचिंगों में चले जाते हैं और रेगुलर कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। उन सब के लिए ऑनलाइन एजुकेशन बहुत बड़ा ऑप्शन। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के पास गाइडेंस होती है, उन्हें पता होता है कि क्या करना है। हमारे टाइम पे तो कोई बताने वाला भी नहीं होता था कि क्या करना है, तो हम तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड रहते थे। बट आज के टाइम पे तो सबको पता होता है। दे आर लाइक, मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि 12th के बाद दे नो कि व्हाट दे वांट टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। अगर CA की तैयारी करनी है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, सो आई थिंक ये उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो अपनी प्रिपरेशन भी करते रहे, साथ साथ एक एजुकेशन। अब सर इसके साथ मैं ये जानना चाहती हूँ कि VGO ऑनलाइन में अगर आप कोई डेटा बता सकें कि कितने स्टूडेंट्स अब तक एनरोल हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन? VGO ऑनलाइन में अभी करीब 2,500 बच्चे जो हैं वो हमारे 5 कोर्सेज में पढ़ रहे हैं। ओके, 1000, 2,500 जी, 2,500 स्टूडेंट्स आर स्टार्टिंग। बहुत अच्छा नंबर है। तो सर यू मीन 2,500 तक स्टूडेंट्स आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि टॉप 10 सिटीज़ कौन सी रहती हैं जहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादातर ऑनलाइन एजुकेशन परस्यू करते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऑफ कोर्स टायर 1 सिटीज़ के हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर,
इन सिटीज़ के ज़्यादा है, बट जैसे मैंने पहले भी बताया कि करीब करीब 40% पॉपुलेशन जो है वो रूरल इंडिया से है, जिसमें राजस्थान के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड के बच्चे हैं। तो ये मिक्स सा क्राउड है, मतलब पूरे देश से है। बट मेजर जब आप बात करेंगे तो क्योंकि इंटरनेट का पॉपुलेशन और जो बच्चा है, हो सकता है वो रूरल इंडिया का हो लेकिन नौकरी आज के दिन में दिल्ली या बॉम्बे में कर रहा हो, तो वो हमारे पास डेटा वैसे। सो मैक्सिमम आपके पास मेट्रोपॉलिटन सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज। एंड सर एक आपका कुछ इनोवेटर प्रोग्राम है, कम्युनिटी फॉर इनोवेटर्स जी, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। देखिए, कम्युनिटी फॉर इनोवेटर प्रोग्राम जो है हमारा यहाँ पे नीति आयोग का अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर है, जिसके अंदर हम कम्युनिटीज के अंदर से जो इनोवेशन निकलते हैं, कम्युनिटीज का कहने का मतलब है कि कोई टेक्सटाइल पार्क है, यहाँ का बस टेक्सटाइल पार्क है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ जो नया कोई आविष्कार है हम उनको फंडिंग करते हैं, भारत सरकार का भी उसमें सहयोग रहता है, और उनको हम स्टार्टअप्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके तहत अभी तक हमने पिछले 1.5-2 साल में करीब करीब 75 स्टार्टअप्स को फंडिंग करी है, जिसमें भारत सरकार ने भी करीब करीब 9 करोड़ रुपए लगाए हैं। एंड दिस हेल्प्ड अस टू, इन सारे स्टार्टअप से करीब करीब 2 से 2,500 जॉब्स का नया क्रिएशन हुआ। अमेजिंग, ये तो बहुत, मतलब ये तो काफी अच्छा आपका इनोवेशन है, एंड इट इज समथिंग वेरी न्यू जो कि ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू है पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को यही डाउट रहता है कि आगे जाके हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो विद स्टार्टअप्स एंड एक हाई, बिल्कुल, स्टार्टअप सिर्फ हाइप का ही नहीं है, जैसे प्रधानमंत्री जी भी कहते रहते हैं, प्लस सभी, भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप, पूरा एक मुहिम सा चला रखा है देश में आज के डेट में कि हमें स्टार्टअप्स बनाने हैं, बहुत सारे क्रिएट करना है, और इनोवेशन, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टडी इन इंडिया, बहुत सारी स्कीम्स के तहत ये एक तरीके से, क्योंकि जब हमारा GR 28 से 80 पहुंचेगा तो आप देखिए कितने लोगों को नौकरी की जरूरत होगी, और हर आदमी ग्रेजुएट होगा तो हर आदमी की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ेगी, तो वो हमें खुद हमारे लिए नौकरियां बनानी पड़ेगी, एंड ये स्टार्टअप्स के थ्रू ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टअप्स तो अभी जो सोसाइटी है उसकी नीड है, बज़वर्ड भी है। बिल्कुल। सो सर, स्टार्टअप से एक और चीज आती है व्हिच इज वेरी ट्रेंडिंग, दैट इज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड AI में पहले चैट GPT आया, और अब चैट GPT जैसा कुछ नया भी आ रहा है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आ रही है। सो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टूडेंट्स की जो जॉब्स हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, या फिर आप किसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो इससे ज़्यादा आगे बढ़ सकें? देखिए, जब 1990 के आसपास देश में कंप्यूटर आया, तब सभी ने यही कहा था कि कंप्यूटर जो है जॉब्स खा जाएगा, जॉब्स खत्म हो जाएंगी, और क्या होगा इस देश में। बट आज आप देखिए मैक्सिमम जॉब्स जो हैं वो कंप्यूटर्स में ही हैं, और IT रिवोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बनी, इन्फोसिस बनी, टीसीएस बनी, जो आज लाखों करोड़ों को नौकरियां दी। सेम चीज AI में होगा, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, हर आदमी को जैसे कंप्यूटर जानना कंपल्सरी सा हो गया है, बिना कंप्यूटर काम नहीं हो सकता, सेम तरह हमें AI के बारे में जानना पड़ेगा, AI को समझना पड़ेगा, AI को पढ़ाना पड़ेगा, और AI को यूज करना पड़ेगा अपनी डे टू डे जरूरतों को पूरा करने के लिए, प्लस काम करने के लिए। सो AI की वजह से नौकरियां जाएगी नहीं, बहुत सारी नौकरियां आएगी। हो सकता है हम वर्ल्ड की AI कैपिटल बन जाएं, जैसे हमने कंप्यूटर में एक अपना नाम कमाया, और पूरी दुनिया की नौकरियां ही भारत में आ जाएं, बट काम करने का तरीका और काम चेंज हो जाएगा। सो जॉब्स कम नहीं होंगी, उल्टा बढ़ेंगी, बट अलग हो जाएंगी। जो आज करते हैं वो कल नहीं करेंगे। सर, हमने अभी बात करी थी स्टूडेंट्स की, एंड इसी के साथ एक चीज़ है जो हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, बट आप कैसे बता सकते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ट्रेडिशनल एजुकेशन में, यानी कि जो हमारी कन्वेंशन चल रहा है, उसमें कुछ डिफरेंसेस भी बताएं, और इसमें ये बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन में कैसे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं।
देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम। ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपको सुबह 8 से 4 क्लास में जाना होता है, फिक्स क्लासेस हैं, फिक्स टीचर हैं। आज आप नहीं जा पाए तो आप अपनी क्लास मिस कर जाते हैं, और वो एक रिग्रेस फिक्स सेट है जहाँ आपको उसी के तहत सीखना पड़ता है ट्रेडिशनल एजुकेशन। फायदा ये है कि आपके क्लास में आपके साथ अपने दोस्त भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, आप मस्ती भी मार लेते हैं, क्लास आगे पीछे भी थोड़ी बहुत शिफ्ट करने में आपको तकलीफ होती है। तो वो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है जो क्लास बेस्ड है, जहां जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। यहाँ ऑफ कोर्स आपकी हफ्ते में 5-6 लाइव क्लासेस होती हैं, बट बाकी सारा एक रिकॉर्डेड क्लासेस है। कंटेंट आपको आपके मोबाइल में है, आप बस में काम करने के लिए जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं तो आप उस वक्त अपनी सुन सकते हैं, ट्रेवल करते हुए सुन सकते हैं, आप अपनी क्लास शाम को सोने से पहले ले सकते हैं, सुबह जल्दी उठ के आपको क्लास लेनी है वो ले। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जहाँ जो आप पढ़ाई के साथ कुछ और कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। जहाँ आपकी पढ़ाई भी चल रही है, दिन में आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं और साथ में अपना काम भी कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल में पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिशनल के अंदर आपको उस शहर जाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है, आपको हॉस्टल में रहना पड़ता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑनलाइन में आप अपने घर पे बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, शहर में बैठे हैं। जैसे हमारे पास कुछ हैं तो भारतीय ही, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्वे से हैं, अभी नॉर्वे में नौकरी कर रहे हैं, कई हैं जो यूएस में नौकरी कर रहे हैं और वो यहाँ की डिग्री ले रहे हैं। तो आप देखिए कितना वास्ट प्लेटफॉर्म और सिस्टम है ऑनलाइन का। तो ये इसके फायदे हैं। जॉब सेम है, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि आपका दोस्त नहीं है कि आपका असाइनमेंट कर दे, आपका दोस्त नहीं है जो आपकी हेल्प कर दे, आपका दोस्त नहीं है जो आपको समझा दे, तो वो खुद आपको समझना पड़ेगा। सेल्फ लर्निंग, सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन में, वो ट्रेडिशनल में कम चाहिए होता है। ट्रेडिशनल में एक दूसरे से लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, वो उसके फायदे हैं। एक फिक्स शेड्यूल में, एक डिसिप्लिन वे में करना है। यहाँ आपको खुद बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा चाहिए। अब क्लास तो रिकॉर्डेड है, आपने अगर 1 हफ्ते नहीं करी तो नुकसान आपका ही है, तो वो आपको करनी ही पड़ेगी फिक्स कि मेरी आज की क्लास जो आई है मैं उसे आज ही करूँ। तो सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन की ऑनलाइन में बहुत ज्यादा जरूरत है। So, दोनों ही केसेस में दोनों के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। And that totally depends कि आपकी क्या प्रेफरेंस है, क्या नीड है। दूसरा ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो, 40 साल का आदमी बीए करना चाहता है, 50 साल का आदमी बीए करना चाहता है या एमबीए करना चाहता है। वो आप रेगुलर क्लास में आपको बड़ा अजीब फील होता है कि मेरा क्लासमेट सारे 15-16 साल के हैं, मैं 60 साल का हूँ, मैं कैसे जाके ये बीए करूँ या बीबी करूँ। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी फायदे हैं, वो अपनी है। कोई ऑनलाइन में ये भी होता है कि किसी का, और हमने देखा भी, हमारे यही एक एग्जांपल है जहाँ एक फादर का बच्चा जो है बीबीए रेगुलर में कर रहा है और फादर जो है ऑनलाइन में बीबीए कर रहा है। सो दैट ऑल इज पॉसिबल इन ऑनलाइन, दैट इज द प्लस पॉइंट। So you have this kind of student? Yes, we have one. Father is in the online BBA program and the son is in the regular BBA program. ये तो बहुत ही अलग चीज है, बहुत अलग चीज है। सेम चीज पढ़ रहे हैं दोनों अपने अपने घर में पढ़ रहे हैं। यहीं पे ये चीज डिफरेंशिएट हो जाती है कि प्रेफरेंसेस के हिसाब से दोनों ने अपने चॉइस मोड ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करी। ग्रेट। सो सर, आप थोड़ा सा चलते हैं आपके कैंपस के साथ साथ और थोड़ी बातें करते हैं। जी, थैंक यू। सर, आपको क्या लगता है कि अभी भी इंटरनेट जो इश्यूज हैं वो उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एजुकेशन नहीं ले पाते? I mean, अगर आप डेटा शेयर कर सकते हो। ये एक बड़ा चैलेंज है जिसमें मेरे ख्याल में सरकार भी बात कर रही है। मैंने पहले भी जैसे आपको बताया था कि भारत नेट के थ्रू अब हर पंचायत में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, बट द क्वालिटी ऑफ इंटरनेट इज स्टिल अ चैलेंज ऑल ओवर द कंट्री। ये एक बड़ा चैलेंज है, बट धीरे धीरे ये सॉल्व होता जाएगा, बिकॉज आज हम देश की सबसे बड़ी डिजिटल, विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी है। हमारे यहाँ डेटा बहुत ज़्यादा है, हर जगह नेट पहुँच चुका है, तो ये 1-2 साल में ये सॉल्व हो जाएगा। और आप अगर डेटा शेयर कर सकें कि कितने स्टूडेंट्स एलएमएस मोबाइल और
मोबाइल से यूज़ करते हैं या फिर डेस्कटॉप से यूज़ कर सकते हैं? मोस्टली क्योंकि हमारा ऐप बेस्ड LMS है, तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो उसको मोबाइल के थ्रू ही यूज़ करते हैं। बट यस, डेस्कटॉप का बहुत कम रेशो है। एग्ज़ाम्स और उस सब के लिए लोग लैपटॉप और डेस्कटॉप ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट रेगुलर क्लासेस के लिए ऐप बेस्ड LMS ही प्रेफर करते हैं। सर, अगर आप किसी स्टूडेंट की कोई हार्ट टचिंग स्टोरी हमारे साथ शेयर करें जिसके बारे में आप अभी तक, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो जिनके बारे में हमें हमेशा याद रहता है, तो किसी जी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वो हैं जो कैंडिडेट हैं जो फादर और स्टूडेंट खुद दोनों BBA कर रहे हैं एक साथ, एक रेगुलर में कर रहे हैं, एक ऑनलाइन में कर रहे हैं। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है। सिमिलरली एक्जिन की विश्व की हेड जो है, एक्जिन नॉर्वे बेस्ड कंपनी है, वो हमारे यहाँ से MBA कर रही हैं। तो ये कुछ एक हैं जो एक अलग तरह का प्रोफाउंड कल्चर देती हैं वीडियो ऑनलाइन। सो मतलब यू हैव आपके इंटरनेशनल भी हैं और नेशनल भी हैं। ये तो सबसे अच्छी चीज़ है कि फादर और सन दोनों साथ में कोर्स एक कर साथ रहे हैं। कोर्स कर रहे हैं। ये तो सच में काफ़ी हार्ट टचिंग है। एंड सर, हम प्लेसमेंट की बात करें तो विच इज़ सबसे बड़ा पेन पॉइंट है स्टूडेंट्स का, बिल्कुल। कि प्लेसमेंट कैसे होगा हमारा, क्या ऑनलाइन एजुकेशन में विल द यूनिवर्सिटी ऑफर्स प्लेसमेंट तो हम असिस्टेंस? जिस टाइप से हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस कराते हैं और तैयारी कराते हैं प्लेसमेंट के लिए, सिमिलर वे में हमारे ऑनलाइन के बच्चों को भी हम तैयारी कराएंगे। अभी हमारा फर्स्ट ऑनलाइन का बैच पास आउट होना है, बट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड उनकी इंटर्नशिप के लिए, उनके प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनीज में बात करना शुरू कर दिया। दूसरा फ़ायदा, एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन का और प्लेसमेंट के लिए स्पेसिफिकली, कि आपके क्लास के कुछ बच्चे, कुछ दोस्त जो हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, वो किसी ना किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप तुरंत से उनके साथ कनेक्ट बना के और डायरेक्ट प्लेसमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, तो मतलब आप प्लेसमेंट असिस्टेंस तो प्रोवाइड कर बिल्कुल, रहे हैं, 100% प्लेसमेंट कनेक्शन भी बना के रख रहे हैं। बिल्कुल, एलुमनाई यानी कि कनेक्शन बच्चों का नेटवर्क बनता रहे सो दैट और कि उनको वहां से भी हेल्प वहाँ मिलती से रहे। और मैं ये एलुमनाई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल, आप टाटा TCS में काम कर रहे हैं, आप MBA कर रहे हैं, और मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं भी ऑनलाइन में MBA कर रहा हूँ, तो मेरा क्लासमेट ही जब टाटा में है तो मैं अपने आप तुरंत से मेरे को नौकरी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, तो मतलब आपके कलीग्स भी साथ में मिल रहे हैं? कलीग्स, आई मीन बिल्कुल, सो इट इज बोथ वे, both way। सो ऑनलाइन में प्लेसमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट। और सर, इसके साथ एक और बहुत बड़ा सवाल आता है, दैट इज कि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये कहना है कि HRs एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन दी स्टूडेंट्स हैविंग ऑनलाइन डिग्री एंड अनदर वन हैविंग रेगुलर डिग्री। तो आपको ऐसा लगता है? जी, ये इनिशियल फेज में हो सकता है। देखिए, कंट्री में ऑनलाइन एजुकेशन UGC ने 2020 से चालू किया। पहला अगर PG का बैच भी आया तो 2022 में आया, अभी हम 23-24 में ही बैठे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है ऑनलाइन डिग्री का। तो वो HR की अपनी एक बायस है पुरानी, क्योंकि पहले जो ऑनलाइन एजुकेशन थी वो हार्वर्ड से थी या EDX या बाकी दूसरे देशों की ऑनलाइन एजुकेशन हम कर रहे थे। हमारी इंटरनेशनल तो काफी पहले से स्टार्ट हुआ है, इंटरनेशनल पर काफी इंडिया में हमारे यहाँ 2020 से ही चालू हुआ, तो पहला बैच ही जब अभी आया ही है, तो ये बायस खत्म हो जाएगा आने वाले 5 से 6 महीनों में। सर, ये भी देखा गया है कि जो सैलरीज हैं जी, जो स्टूडेंट्स की है उसमें भी काफी डिफरेंशिएट होता है, तो आपको ऐसा लगता है? ये देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा इनिशियल फेज है ऑनलाइन एजुकेशन का। 2020 में, जैसे मैं पहले भी बताता, शुरू हुआ, अभी आया। सैलरीज में डिफरेंस है, रहेगा भी। जैसे आप अगर अपन देखें तो IITs से इंजीनियरिंग करने वाले और नॉर्मल कॉलेज से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में थोड़ा सा सैलरी डिफरेंस होता है, तो थोड़ा बहुत रेगुलर और ऑनलाइन में डिफरेंस होगा, बट वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के चांसेस कम है। आई फील अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं, बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो, अगर आप अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं अलग अलग कोर्सेज साथ में करके, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका सैलरी पैकेज कैसे होने वाला है, rather than your बिल्कुल। mode अगर of कोई education। एक्सपीरियंस्ड आदमी है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस लेके अब MBA कर रहा है, तो उसका ऐसा नहीं कि आज MBA कर रहा है तो उसका फ्रेशर वाला पैकेज लगेगा। उसका पैकेज इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसका खुद का स्किल सेट क्या एक्सपीरियंस वो लेके आ रहा है।
So that will have an impact. ऑनलाइन की वजह से कोई पैकेज में डिफरेंस आ रहा है, ऐसा नहीं होने वाला। सर एक बहुत बड़ा चीज है दैट इज कि एनरोलमेंट रेशियो हमें बढ़ाना है, जैसे कि आपने बोला जीआर बढ़ाना। एंड फॉर दैट काफी सारे स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है कि दे कांट अफोर्ड द फी स्ट्रक्चर। बिल्कुल। सो डज वीजीओ ऑनलाइन ऑफर्स एजुकेशन लोन? जी, एजुकेशन लोन बैंक से भी मिलता है। इसके अलावा हमने बहुत सारे एनबीएफसीज और से पार्टनरशिप कर रखी है जो ईएमआई बेसिस पे फीस पेमेंट करने के ऑप्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, सो मतलब एजुकेशन लोन इज अवेलेबल थ्रू द वेरियस बैंक्स। and college with also helps in that. We also offers education loan. And sir, with that I really would like to know about the vision and mission of देखिए, Vivekanand Group. वीजू का जो विजन है दैट इज वी आर एस्टेब्लिशिंग अ यूनिवर्सिटी ऑफ फ्यूचर। वी ऑलवेज से दैट आवर स्टूडेंट शुड से दैट आई एम द फ्यूचर। सो जो फ्यूचर में स्किल सेट की जरूरत होगी, जिस टाइप की जॉब्स आ रही हैं उसके लिए हमें क्या नॉलेज चाहिए, क्या स्किल सेट चाहिए, दैट इज आवर विजन। सो वी वांट टू क्रिएट एम्प्लॉयर्स, दैट इज आवर फोकस इज ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, आवर फोकस इज ऑन टू क्रिएट ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए स्टूडेंट, क्योंकि आजकल वैसे भी डिप्रेशन और इन सब की बहुत सारी इश्यूज हैं। तो जब हम किसी भी एक स्टूडेंट को देते हैं तो हम वो एक ऐसा कंप्लीट पैकेज दें जिससे स्टूडेंट की ग्रोथ जो है वो लाइफ लॉन्ग रहे। Thank you so much sir. And with that I really want to know about एक छोटा सा फीडबैक आपका भी चाहिए हमें। You must have known about कॉलेज विद्या। बिल्कुल। And I really want you to say something about it. देखिए, कॉलेज विद्या जो प्लेटफॉर्म है, फ्रेंकली स्पीकिंग ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ऐसा कोई और दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जो उन एक स्टूडेंट को एक के टाइम पे बता सके कि किस यूनिवर्सिटी की क्या क्वालिटी है, क्या है। क्योंकि जिस रेगुलर में क्या होता है कि बच्चा यूनिवर्सिटी जाके देखता है जी। ऑनलाइन के अंदर वो यूनिवर्सिटी जा नहीं रहा। आज भी देश में 80 के आसपास यूनिवर्सिटी, तो किसको कैसे कंपेयर करे, किसको एक ही बुके में उसको पता लग जाए कि किस यूनिवर्सिटी की क्या विशेषता है, कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज में अच्छी है। ये सारी चीजें जो है कॉलेज विद्या देती है। आई थिंक दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब इन दैट। And if you would want to rate कॉलेज विद्या 10 out of? I'll give 8 because अभी भी बहुत सारा वर्निकुलर लैंग्वेज और उसमें काम करने की जरूरत है। So Thank you so much sir. Thank you so much for your time. Thank you ma'am. Thank you so much.